Good evening and welcome to Big Story, where we bring you the most important developments shaping the world around us. I'm Idris, and tonight we are focusing on the high-stakes Maharashtra Assembly elections, which took place today on November 20th, 2024, with 288 seats up for grabs. The contest has been fierce between the ruling BJP-led Mahayuti alliance, looking to retain power, and the Maha Vikas Aghadi alliance, hoping for a strong comeback. As the state heads to the polls, Watertown has been shaping to be one of the most pivotal moments in Maharashtra's political history, with thousands of candidates, including rebels and independents, vying for power. The outcome of today's election will decide the state's future direction. Stay with us as we bring you all the updates, analysis, and key moments as they unfold. This is Big Story, and we are just getting started. Today, that is November 20th, 2024, marks a significant moment in Maharashtra's political landscape as voting for 288 assembly seats takes place across the state. The ruling BJP-led Mahayuti alliance is hoping to retain power, while Maha Vikas Aghadi alliance is aiming for a strong comeback. The state has been witnessing an intense battle between 4,136 candidates in the fray, including 2,086 independents. Over 150 constituencies are marked by rebel candidates from both alliances contesting against their official party nominees, further complicating what is already a fiercely contested election. With polling running until 6 p.m. on Wednesday, that is November 20th, 2024, the state is gearing up for a long, hard-fought contest. चाइना जी दर्शन करके आ रही हैं और आज पोलिंग डे है, क्या कहना चाहेंगे? मां मुंबा देवी का आशीर्वाद रहा है पहले दिन से। नामांकन करने के पहले भी मैं आई थी और आज वोटिंग के दिन मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा में, जनहित में मैं काम करूं, उसी ऊर्जा के साथ जहां मां मुझे आशीर्वाद देती है, और उस हिसाब से यहां मुंबा देवी में परिवर्तन लाना है, सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा के साथ और सच्चे विश्वास के साथ। एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और सभी इसका सहयोग रहा है। जब मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मैं मानती हूं कि जीत तो प्राप्त हुई है। जनता से क्या अपील करेंगी? अब बस सुबह का टाइम है और सारे जनता से मैं सिर्फ जनता को ये कहूंगी कि बाहर आके वोट कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप जो परिवर्तन लाना चाहें, आप जो सुधार लाना चाहते हैं, तो शुरुआत होती है वोट के लिए। और वोट, ये जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी। तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह। एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया शुक्रिया का और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए, मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने। महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया, उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे, और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं, और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। As the polling stations across Maharashtra open at 7 a.m., citizens turn out in large numbers to cast their votes. Bollywood celebrities have joined the long lines to perform their civic duty. A notable presence was of Salman Khan, who was seen leaving the polling booth in a simple grey t-shirt and denim jeans. Along with his brother Arbaz Khan, also seen voting were actor Akshay Kumar, Rajkumar Rao, and Ranbir Kapoor, among others. Business tycoon Mukesh Ambani with his family also exercised their right to vote, posing for cameras outside the polling booth. These figures are not just participating in the democratic process, but also encouraging the public to engage actively in shaping the future of the state. ही जागा साकोलीसह आमच्या भारतीय जनता पार्टी, आमचे मित्र पक्षांची येणार आहे,
आणि सोबत एक शिवसेनाची भंडाराची जागा ती पण आम्हाला मिळणार आहे. 7 जागा या गोंदिया भंडारा जिल्ह्यामध्ये महायुतीला मिळणार आहे. हे विश्वासाने मी तुम्हाला इथे सांगायला उभा आहे. नाना पटोले आरोप लगा रहे हैं कि पैसे को लेकर विनोद तावड़े का जो वीडियो सामने आया है, विनोद तावड़े के वीडियो में कोई तथ्य नहीं है. न विनोद तावड़े कोई पैसा का हाथ लगा रहे हैं, न किसी को पैसे की बात कर रहे हैं, न उन्होंने अपने किसी को दिया है. अब वो कोई रेस्टोरेंट में बैठे थे, उसी होटल में ऊपर कोई कमरे में 10 लाख रुपया अगर किसी का जब्त हुआ है तो उसमें विनोद तावड़े का क्या संबंध है. और आज जब चुनाव लड़ते हैं तो अगर किसी का 10 लाख रुपया अगर प्राप्त हुआ है तो वो एक जांच का विषय है. और ऐसे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 40 लाख रुपये तक कोई भी उम्मीदवार अधिकृत खर्चा कर सकता है. अब वो उसका है कि कौन सा पैसा है या उम्मीदवार का है, ये तो जांच बताएगी. लेकिन विनोद तावड़े को केवल, मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं तो एक षड्यंत्र किया, काटोल में किया, ये तावड़े जी के साथ किया, और ये केवल और केवल एक फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है. हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, उनको मालूम है उनके पैर के तले की जमीन खिसक रही है, और ये स्वाभाविक है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी फ्रस्ट्रेशन चुनाव के वक्त होता है. तर सुप्रियाताईच्या ते बिटकॉईनचं प्रकरण गाजत आहे सकाळपासून. बिटकॉईनच्या प्रकरण ते मला माहित नाही आहे, पण नक्कीच काही ना काही तथ्य असेल तेव्हाच असे आरोप होत आहे. पण मला त्यामध्ये जास्त माहिती नसल्यानं मी अधिक बोलू इच्छित नाही. पण हे पण तपास केली पाहिजे जर खऱ्या अर्थानं असं झालं असेल, कारण बिटकॉईन आणि हे सगळे नवीन टेक्नॉलॉजीचे जे करन्सी आहे त्याच्याही खोलात जाऊन चौकशी झाली पाहिजे. ठीक आहे. की 4ही जागा साकोलीसह आमच्या भारतीय जनता पार्टी, आमचे मित्र पक्षांची येणार आहे, आणि सोबत एक शिवसेनाची भंडाराची जागा ती पण आम्हाला मिळणार आहे. 7 जागा या गोंदिया भंडारा जिल्ह्यामध्ये महायुतीला मिळणार आहे. हे विश्वासाने मी तुम्हाला इथे सांगायला उभा आहे. नाना पटोले आरोप लगा रहे हैं कि While many celebrities and public figures were spotted at polling stations, ordinary citizens across the state were also taking part in the voting process. By 5 p.m. on November 20th, a voter turnout of 58.22% had been recorded, signaling an engaging electorate. The importance of this election goes beyond the individual constituencies, as Maharashtra's future will be determined by the collective choices of its people. With both major alliances fighting tooth and nail, each vote could play a crucial role in determining the next chapter for the state's political future. चाइना जी दर्शन करके आ रही हैं और आज पोलिंग डे है, क्या कहना चाहेंगे? मां मुंबा देवी का आशीर्वाद रहा है पहले दिन से. नामांकन करने के पहले भी मैं आई थी और आज वोटिंग के दिन मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा में, जनहित में मैं काम करूं, उसी ऊर्जा के साथ जहां मां मुझे आशीर्वाद देती है, और उस हिसाब से यहां मुंबा देवी में परिवर्तन लाना है. सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा के साथ और सच्चे विश्वास के साथ. एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और सभी इसका सहयोग रहा है. जब मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मैं मानती हूं कि जीत तो प्राप्त हुई है. जनता से क्या अपील करेंगी? अब बस सुबह का टाइम है और सारे जनता से क्या अपील करेंगी? मैं सिर्फ जनता को ये कहूंगी कि बाहर आके वोट कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है. आप जो परिवर्तन लाना चाहें, आप जो सुधार लाना चाहते हैं, तो शुरुआत होती है वोट के लिए. और वोट, ये जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी. तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह. एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया सुप्रिया सुले का और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए, से मैं तावड़े जी का मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है. आज दिन है
महाराष्ट्र के फैसला को लेने महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। शायना जी दर्शन करके आ रही हैं और आज पोलिंग डे है, क्या कहना चाहिए? मां मुंबा देवी का आशीर्वाद रहा है पहले दिन से। नामांकन करने के पहले भी मैं आई थी और आज वोटिंग के दिन मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा में, जनहित में मैं काम करूं उसी ऊर्जा के साथ जहां मां मुझे आशीर्वाद देती है और उस हिसाब से यहां मुंबा देवी में परिवर्तन लाना है, सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा के साथ और सच्चे विश्वास के साथ। एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी इसका सहयोग रहा है। जब मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मैं मानती हूं कि जीत तो प्राप्त हुई है। जनता से क्या अपील करेंगी? अब बस सुबह का टाइम है और सारे जनता से क्या अपील करेंगी? मैं सिर्फ जनता को ये कहूंगी कि बाहर आके वोट कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप जो परिवर्तन लाना चाहें, आप जो सुधार लाना चाहते हैं, तो शुरुआत होती है वोट के लिए। और वोट ये जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी। तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह। एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया सुप्रिया सुले उनका और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए, मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। शायना जी दर्शन करके आ रही हैं और आज पोलिंग डे है, क्या कहना चाहिए? मां मुंबा देवी का आशीर्वाद रहा है पहले दिन से। नामांकन करने के पहले भी मैं आई थी और आज वोटिंग के दिन मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा में, जनहित में मैं काम करूं उसी ऊर्जा के साथ जहां मां मुझे आशीर्वाद देती है और उस हिसाब से यहां मुंबा देवी में परिवर्तन लाना है, सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा के साथ और सच्चे विश्वास के साथ। एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी इसका सहयोग रहा है। जब मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मैं मानती हूं कि जीत तो प्राप्त हुई है। जनता से क्या अपील करेंगी? अब बस सुबह का टाइम है और सारे जनता से क्या अपील करेंगी? मैं सिर्फ जनता को ये कहूंगी कि बाहर आके वोट कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप जो परिवर्तन लाना चाहें, आप जो सुधार लाना चाहते हैं, तो शुरुआत होती है वोट के लिए। और वोट ये जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी। तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह। एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया सुप्रिया सुले उनका और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए, मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। शायना जी दर्शन करके आ रही हैं और आज पोलिंग डे है, क्या कहना चाहिए? मां मुंबा देवी का आशीर्वाद रहा है पहले दिन से। नामांकन करने के पहले भी मैं आई थी और आज वोटिंग के दिन मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा में। देखिए, जहाँ तक मुझे इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर से ये दिखाई देता है कि जो हम लोग ने पहले अनुमान लगाया था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बोलबाला महाराष्ट्र में नहीं होगा, वही ट्रेंड मुझे दिखाई देती है। और दूसरा जो है वो रीजनल संगठन जो है उनकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर से ये दिखाई देता है कि जो हम लोग ने पहले अनुमान लगाया था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बोलबाला महाराष्ट्र में नहीं होगा, वही ट्रेंड मुझे दिखाई देती है। और दूसरा जो है वो रीजनल संगठन जो है
उनकी ताकत As the exit polls for Maharashtra begin to trickle in, they are likely to approach the results with caution. Based on past experiences, analysts predict that the margin of error in these polls will be wide, with the possibility of declaring a winner regardless of which alliance takes the lead. The Maharashtra Assembly election is expected to be one of the most closely contested races in the state's history, with the final outcome too close to call. This uncertainty highlights the dynamic and unpredictable nature of the state's politics, which has been marked by changing alliances and volatile voter sentiment. जो है ये कह रही है कि ये स्टंट है, केवल जो है हारने वाले हैं, इसके लिए इस प्रकार से जो है हमला किया गया है, खुद ने खुद के ऊपर हमला किया। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कहना है कि जिस तरह हम लोग लोकतंत्र में काम करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो लोग चुन कर आते हैं, जिनको ज्यादा सीट मिलती है वो सरकार बनाते हैं, वो सत्ता में आते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसे कभी हमले और गुंडागर्दी का काम नहीं हुआ है। मतलब बीजेपी अपना भूमिका लोगों के सामने रखती है। इसीलिए अनिल देशमुख जी फॉर्मर होम मिनिस्टर भी हैं, नागपुर के नेता भी हैं, शरद पवार जी के साथ वो मतलब बहुत उनके नजदीक भी है, हमारे अच्छे मित्र भी है। तो जो भी मतलब अभी हमला हुआ या क्या हुआ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो किसी ने हमला किया होगा तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी का कहना है कि हमें मतलब किसी पर हमला करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है और हमारा कोई ऐसी गुंडागर्दी में विश्वास नहीं है, इसीलिए बीजेपी के मत से मैं सहमत हूँ कि भाई यहाँ क्या हमले का क्या हुआ इसकी पूरी जांच पुलिस करे। अपेक्षा तो है लोग जागरूक होकर करें, अपने संविधान का अधिकार का पूरा उपयोग करें, सूझबूझ कर मतदान करें। कल पैसों का एक मैटर सामने आया था, पैसे बांटने का, क्या ये उचित है? तो मैं नहीं जानता उसके बारे में। अपेक्षा तो है लोग जागरूक होकर करें, अपने संविधान का अधिकार का पूरा उपयोग करें, सूझबूझ कर मतदान करें। कल पैसों का एक मैटर सामने आया था, पैसे बांटने का, क्या ये उचित है? तो मैं नहीं जानता उसके बारे में। अपेक्षा तो है लोग जागरूक होकर करें, अपने संविधान का अधिकार का पूरा उपयोग करें, सूझबूझ कर मतदान करें। कल पैसों का एक मैटर सामने आया था, पैसे बांटने का, क्या ये उचित है? तो मैं नहीं जानता उसके बारे में। अपेक्षा तो है Recent surveys, including one by Lokniti CSDS, have indicated a tight race between the Maha Vikas Aghadi and the Mahayuti. According to the survey, the MVA's position in Maharashtra has been challenged by the Mahayuti, which has successfully gained ground in some constituencies due to the popularity of welfare schemes introduced by the incumbent government. Among these schemes, the Ladki Bahin Yojana has been credited with gaining the Mahayuti favor among the women voters. However, with both alliances facing internal rebellion, the situation is fluid and the true impact of these developments remains to be seen. तो कशाचंच काही नाही, त्यावेळी अन्याय कसा झाला, कोणा काही नाही.
मग तुम्ही सुप्रिया सुळेंवरती अन्याय केला का मग? कारण त्यांना तुम्ही पद दिले नाही, त्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री बनवलं नाही, त्यांना तुम्ही रेवंत रेड्डी सुद्धा पुण्यामध्ये काल बोलताना असं म्हटले की शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंना कधीच मंत्रीपद दिलं नाही, जे अजित पवारांना कायम दिलं. ते सुप्रिया सुळेंना बारामतीकरांनी चौथ्यांदा संसदेत फसवलं याच्यातलं समाधान आहे. म्हणजे तुमच्याकडे लाडका पुतना योजना होती. असं आहे की आपण कोणत्या पातळीवर जावं इथे शास्त्र सुद्धा पाहिले जात नाही, हे लक्षात येईल. हिंदी में सर, आज आपने मतदान किया है यहाँ पे, क्या कहना है सर, लोगों से क्या अपील है और क्या लग रहा है सर महाराष्ट्र का क्या करना? दूसरा क्या करना? भी लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं. सर, कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास. बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है. जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. सर, एनडीए के सरकार तो कशातच काही नाही, त्यावर अन्याय कसा झाला पुन्हा कधी. मग तुम्ही सुप्रिया सुळेंवरती अन्याय केला का मग? कशासाठी? कारण त्यांना तुम्ही पद दिले नाही, त्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री बनव. Meanwhile, the BJP, as the largest member of the Mahayuti, has struggled with a delicate balance in the state. On one hand, it has faced fierce opposition from the MVA, and on the other hand, the party has had to manage its own internal challenges, especially with the Shiv Sena faction leading to coalition. The BJP's success in this election will likely depend on how well it can perform in the assembly seats it controls. Meanwhile, the MVA is putting up a united front with Congress, Shiv Sena and the NCP rallying their supporters around the promise of a change in leadership and governance. बैंक अघाड़ी ही नहीं बल्कि महावसूली अघाड़ी भी है, और वसूली जब सरकार थी तब भी चल रही थी. किस प्रकार से उद्योगपति के घर में बम लगाकर कैसे वसूली 100-100 करोड़ की उनके गृह मंत्री कर रहे थे वो भी हमने देखा, और जब सत्ता के बाहर चले गए तब भी भ्रष्टाचार और वसूली की दुकान, यही एमवीए की पहचान. अब तो बिट बाय बिट इनका क्रिप्टो करप्शन सामने आ गया है. आज सवाल सिर्फ इतना बनता है, नाना पटोले जी और सुप्रिया सुळे जी, क्या आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करवा रहे थे? क्या ये वैध ट्रांजैक्शन था? क्या विदेशी स्रोत से इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा आ रहा था? क्या चैट्स और जो ऑडियो टेप आया है सामने उसमें आवाज आपकी है या नहीं है? क्या आप इस मेहता और गुप्ता को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आप इस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में शामिल है या नहीं है? बिट बाय बिट करप्शन के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की पोल खुल गई है. एक तरफ सज्जाद नोमानी से और मुफ्ती सलमान से किस प्रकार से वोट बैंक की दुकान चलाई, और दूसरी तरह कैसे भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं. ये वोट बैंक की दुकान, भ्रष्टाचार की दुकान, यही एमवीए का काम है, यही एमवीए की पहचान है, और इसीलिए आज इन पर स्पेसिफिक जवाब आने चाहिए. इधर उधर भागना नहीं है. ये भ्रष्टाचार वसूली की अघाड़ी है. ये
मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी है। ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को समेटने के लिए और भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोट बैंक जिहाद और अब क्रिप्टो करप्शन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करना, ये इनका एजेंडा। अब महा वोट बैंक Several local issues are dominating the political discourse in Maharashtra, while national issues remain significant. Local concerns such as water scarcity, employment and the economic well-being of rural areas are central to the campaign rhetoric. This hyperlocal focus has become a distinguished nature and feature of Maharashtra's political environment, where the electorate is highly attuned to the specific needs and concerns of their communities. Both alliances have tailored their strategies to address these local challenges, hoping to win the support of key voter groups, including OBCs, Dalits and tribal populations. महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग हुई है, कांग्रेस गठबंधन क्या कम बैक करने जा रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि झारखंड में हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में हम अच्छे बहुमत से, प्रचंड बहुमत से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को विश्वास है महाविकास आघाड़ी के जो वादे हैं, जो गारंटी है हमारी, चाहे वो किसानों की कर्जा माफी हो 3 लाख तक की, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हो, चाहे वो उनकी फ्री बस सेवा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ बीमा हो। लोगों को यकीन है कि महाविकास आघाड़ी ने ये काम अपने राज्यों में, हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में करके दिखाया है और लोगों को पता है कि अडानी की सरकार नहीं चल सकती और लोग वो बदलाव करना चाहते हैं। मैम, कितनी सीट आने की उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही कि वो तो 3 सीट नहीं, बीजेपी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का पूरा हक है। आजाद देश है, यहाँ पर कोई भी सपना देख सकता है। बीजेपी को पता है कि वो झारखंड में भी नहीं आ पाएगी। बीजेपी को पता है कि महाराष्ट्र से भी लोग निकालने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उन्होंने अपमान किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे प्रहार किया, उसका बदला महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में भी लिया था और अब विधानसभा में भी सबक सिखाने जा रहा है। सुप्रिया सुले पर क्रिप्टो करेंसी का आरोप लगा रही बीजेपी, कितनी सच्चाई है? सुप्रिया सुले जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो साइबर क्राइम में इसकी जांच के आवेदन दिया है और सबसे बड़ी केस किया और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका है। बीजेपी कल रंगे हाथों पैसा बांटते हुए महाराष्ट्र में पकड़ी गई। उसके बाद से बीजेपी बिलबिला गई। रात को 10:30 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप सुबह 1:30 बजे करिए, सुबह 4 बजे करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि जिन लोगों ने चोरी से सरकार बनाई थी, उन लोगों की चोरी पकड़ी गई है। अब वो चोरी से विधायक ही नहीं खरीद रहे, चोरी से वोट खरीदने की कोशिश करते। उसके बाद से बीजेपी बिलबिला गई है और पौने आरोप लगा रही है। लगातार बीजेपी वहां दमखम के साथ इलेक्शन में जो है वो कर रही थी, ये वीडियो वायरल हुआ, कितना प्रभाव पड़ेगा ऐसे में? नहीं, बीजेपी कोई दमखम से नहीं लड़ रही थी। बीजेपी ने तो ऐसा नारा दिया जिससे बीजेपी और उनके घटक दल ही बट गए। बीजेपी ने ऐसा नारा दिया कि पंकजा मुंडे से लेकर अशोक चव्हाण और अजीत दादा पवार तक खड़े हो गए कि ये गलत नारा है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उनको अमित शाह की फोटो हटानी पड़ गई अखबारों से। तो मुझे लगता है दमखम से तो खैर बीजेपी। मैम, महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग हुई है, कांग्रेस गठबंधन क्या कम बैक करने जा रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि झारखंड में हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में हम अच्छे बहुमत से, प्रचंड बहुमत से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को विश्वास है महाविकास आघाड़ी के जो वादे हैं, जो गारंटी है हमारी, चाहे वो किसानों की कर्जा माफी हो 3 लाख तक की, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हो, चाहे वो उनकी फ्री बस सेवा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ बीमा हो। लोगों को यकीन है कि महाविकास आघाड़ी ने ये काम अपने राज्यों में, हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में करके दिखाया है और लोगों को पता है कि अडानी की And that's a wrap for tonight's big story. As the polls close in Maharashtra, all eyes will be on the results and what they mean for the future of the state. With such a tight race between the Mahayuti and MVA alliances, the next few days will be crucial in shaping Maharashtra's political landscape. Thank you for joining us this evening. I'm Idris and will continue to keep you informed with the latest developments. Until next time, stay safe, stay informed and good night.